यहाँ से क्या मारे बीच में जाके मारे अरे एक मिनट हो गया ना भाई तुम लोग का। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक मिनट अभी इधर देखिए सर, इधर देखिए अभी। Didara, aka Dara Singh, for which we have gathered here this evening, is a very important title for wrestling. And not only because of the content, but as the editor of the book, as publishers of the book, we have a very deep and extremely emotional connect with this particular book. This story is not only about one of the greatest wrestlers, actors in history of India, but at its core, it's the triumph of the Indian spirit. Of the book, ladies and gentlemen, the lady who's on stage, Seema Sonik Alimchan. I've worked with a lot of authors, but what is unique about Seema is the deep reference. I mean, we would spend hours talking about Dara Singh Ji and forget that we're editing a book. There was such deep reverence and love for her subject, Sri Dara Singh. Seema is the daughter of the renowned Sri Sonik of the musical duo Sonik Omi. And as a child of the industry, like I said, there were many times when we would go elsewhere because we were talking about Dara Singh Ji. Namaskar. Good afternoon, ladies and gentlemen. Didara, the book, is the life journey of the great Mr. Dara Singh. Like Sudha just said, it tells of his childhood years spent working the fields of Punjab. It tells thereafter of his many years of struggle to earn a living and then to get into the world of wrestling. It tells of his travels to foreign shows, championships, tournaments, world tours, and finally he is declared the champion of the world. नमस्कार। I'd like to say कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारी फैमिली की लाइफ में। हमें बहुत हम किस्मत वाले हैं। मेरे बड़े भाई प्रदुमन, मेरे चढ़ोए अमरीक यहाँ हैं और मेरी बहनें जो यहाँ नहीं हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, फैमिली, सारे दोस्त यहाँ हैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा यहाँ नहीं है। तो एवरीबडी इज नॉट देयर, वी लव यू ऑल। डैड की जो बुक है, एक ड्रीम थी हमारी कि डैड की बुक आए और जो इंस्पिरेशन ये जनरेशंस को दे रही है। From the old people, everybody knows him, but I think जो young बच्चे हैं, 14 साल, 15 साल, they should also understand कि अगर आप achieve करना चाहो और कोशिश करो, तो कुछ भी कर सकते हो। And I want to just thank Akshay, जिसे मैंने एक बार कहा कि please, I want you to inaugurate my book, and he was so magnificent. He said, Nindu bhai, why do you want me to come here and be here? And मैंने बोला भाई सीधी सी बात है कि there is only one खिलाड़ी of Bollywood, international खिलाड़ी number 1. And this is the Khiladi of wrestling, and it would be wonderful if you launched it. Thank you. Thank you very much. Akshay Kumar, yes. Very good. नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार और ये मैं हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं हूँ कहीं खुदावा में। दारा सिंह साहब वहाँ आए हुए थे कोई इनॉग्रेशन करने के लिए, तो मेरे पिताजी भी रेसलर थे एंड वो भी लंबे चौड़े थे एंड कैसे ना कैसे वहाँ हमें 3 टिकटें मिली, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे फादर। ये मतलब ये दिन मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ 4-5 दिन पहले की ही बात है ये, क्योंकि ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है इस पे एक शब्द लिखा था किल रॉय। उस वक्त एक टी शर्ट हुआ, मतलब कंपनी का नाम था किल रॉय, अब वो कंपनी बंद हो गई है। सो आई स्टिल रिमेंबर दिस फोटोग्राफ एज इफ इट वाज क्लिक्ड अबाउट 5 days back only. I'll tell you one small story
जो हमें मालूम है दारा सिंह जी के बारे में शायद इस किताब में ना हो। दारा सिंह साहब की एक मिथ थी, लेकिन बचपन में जब हमें ये नहीं पता था कि ये मिथ है, हमें लगा कि ये असली में। हमें ये पता था कि दारा सिंह जी के पीठ पे त्रिशूल है। ये कमाल की बात है, तो हम यही सोचते थे कि इनकी पीठ पे कोई त्रिशूल है, और अगर इनको गुस्सा आएगा तो दारा सिंह साहब की तीसरी आंख है वो खुल जाएगी। ये मैं भगवान कसम कह रहा हूँ कि मुझे यही मालूम था कि इनकी तीसरी आंख भी है, कि इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़ते वक्त कोई 3-4 राउंड हार जाए तो चौथे राउंड पे अपनी आंख खोल के तो उसको पीट देंगे। तो हमें तो यही पता था, हम तो यही जानते हैं कि अगर शक्ति की बात हो तो यही मालूम है कि दारा सिंह जी का नाम ही दिया जाएगा। शक्ति मतलब दारा सिंह जी। यहाँ तक कि ये नाम इस इंडस्ट्री के अंदर अमूमन तौर पे ऐसे भी लिया था, ओ क्या अपने आप को दारा सिंह समझता है क्या फिर? तो मतलब अपने आप को पहलवान समझता है। सो आई हैव, मैंने बचपन में वो स्टेडियम था वल्लभ भाई, तो वहाँ मैंने 2-4 मैचेस भी देखे हैं उनके। वहाँ जाके बैठ के देखा करते थे कि कैसे उछल के मारते हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट अगर मुझे ये मौका मिला कि उनकी पिच आके फील करूं। एंड साथ में आज बगर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनके बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी फर्स्ट फाइट फिल्म इंडस्ट्री की जो फर्स्ट फाइट है वो बगर साहब मेरे यहाँ मेरे फाइट मास्टर रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ फाइट के बारे में सिखाया। और पहला पंच मेरे मुंह पे जिसने मारा था वो गुरबचन साहब भी वहीं बैठे हुए हैं। इन्होंने पहली बार मुझे मारा था फिल्म के अंदर, एंड किया था बढ़िया। सो इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन एंड आई वोंट टेक मच टाइम and are we going to have question answers? No, we will, but before that an AV has to play. Oh, actually. yeah. Yes? So And let's play there's a that. small AV which I requested Bindu sir to just get ensemble all his work together, and so we all can see it. So here is the AV, let's watch it. We'll open for 1 or 2 questions maximum, but first, if they could all settle down. I was shooting with a child. I was shooting for an ad, and there's this child who was an artist, and he was asking me about it, how to eat healthy food. On the contrary, उसकी माँ भी थी
अच्छा जी बताइए ना थे ये देखिए ये कोई फ्रूट नहीं खाता, इसे समझाइए। देखो बेटा अगर आपको अक्षय बनना है तो आपको फ्रूट खाना पड़ेगा, वेजिटेबल खाना पड़ेगा। तो यस, सो आई हैव दीस काइंड ऑफ मोमेंट्स कमिंग समटाइम, बट मैं वहाँ डरा हुआ था। अगर वो फोटो वापस आएगी तो आप देखोगे मेरे उनका हाथ मेरे पे था, मैं डरा हुआ था कहीं मुझे मार ना दे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव दिस थिंग अबाउट इनकी तीसरी आँख खोल ना जाए, सो समथिंग लाइक दैट। मैं आपके घर में पैदा हुआ, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे। दारा सिंह का बेटा, मुझे रोना आता है, बोला रुक जा, लंबा हो जा और तब तेरी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। तो 8th स्टैंडर्ड से मैं स्टार्ट हुआ और बॉडी बनाई। ये ऐसे जैसे अक्षय कर रहा है, अभी इसका बेटा कर रहा है, जो स्टंट्स और सब वैसे हम लोगों ने भी बहुत किए। तो जब डैड अच्छे होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह सेहत के बारे में सिखाते हैं, तो बच्चे भी खतरनाक दिखते हैं, वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा 100% आ रहा हूँ। Carried his legacy forward, his mother. Mrs. Surjit Dara Singh Randhawa, Surjit Aunty. I met her last year in March, and from the moment that I met her, she first gave me a big hug, and after that it was just lots of cups of teas, lots of stories, and she herself was a story writer. I mean, she has one book somewhere in Punjabi. She's written her whole village life, and she took me back to the village in Punjab. You know, she was in Amritsar, and how she met Daraji the first time, and her chachi used to tell her that, you know, wrestler hai, unse shaadi karo. So she said, मुझे नहीं करनी कोई wrestler से शादी. And then he said, चाची said कि तू बहुत बड़े हैं, प्लेन पे चढ़ेगी, ऐश करेगी. तो she replied to her, आप करो और आप प्लेन पे चढ़ो, आप ऐश करो, मुझे छोड़ दो. But she was such a beautiful and such a strong woman. She completed the book with me, and unfortunately, March this year, she passed away. I miss her tremendously, and I wish she'd been here today. Thank you so much. Mrs. Bindu Dara Singh wanted a question, to ask her husband about Dad, she said. So